ओके सो गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर क्या था, हम लोगों ने डिस्कस किया था अडेप्टिव कंट्रोल के बारे में ना। वी हैव डिस्कस्ड अडेप्टिव कंट्रोल इन द लास्ट लेक्चर एंड इट्स टाइप टुगेदर विद सम इट्स advantages etc. These things we have discussed in the last lecture, and this is in this lecture, today's lecture, we will be starting a new topic, that is NC part programming. How the program is prepared and what is a particular program. I think I have already discussed what is a part program, what is a block, and how a block is separated with the another block, what are the instructions, how we can prepare a part program. All these things we have discussed in the previous lectures, like when we started automation. But in this lecture, this particular lecture, today's lecture, we are discussing NC part programming, that is how part programs are prepared, okay, to just execute or how the instructions are given to the machine so that your tool will be working. Okay, so let us start with this topic. So in general case, an NC part programming is what? It is a set of instruction. A NC part programming is a set of instructions that we provide to the system so that these instructions will be executed by the MCU, and the MCU will generate some signals, and those signals will be given to the tools, and your tool will work accordingly. So a program generally considers the various types of data, like what should be the feed rate, what should be the cutting speed, what should be the various coordinates, what should be the path on which your tool will move. So whenever your tool is working somewhere, then we have to define its path through which it will move to its desired location. Okay, so an NC part programming is what? It is a sequence of instruction that we generally provide to the MCU, and those instructions are then executed by the MCU. MCU जो होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, उसको हम क्या करते हैं, बहुत सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और those set of instructions is considered as a part program, okay, or NC part program. And MCU, that is machine control unit, will execute those set of instructions. Execute means it will take those instructions and will generate certain signals, and those signals will run your machine tool like your cutting tool etc. Those will be working accordingly. So these instructions are what? These instructions includes the work that we want to done by the cutting tool. So the cutting tool will receive the signals, and it will, in the signals we will be having the cutting the values of various parameters. So those things will be done by the cutting tool. So these instructions generally describes or explains the work that the cutting tool or machine tool have to be done. ठीक है, तो ये जो भी काम मशीन टूल को करना होता है, वो सारा काम हम डिफाइन करते हैं किसके थ्रू? पार्ट प्रोग्राम के थ्रू. तो पार्ट प्रोग्राम में ये सारी चीजें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस होती है, हो सकती है वो कोड की फॉर्म में हो सकती हैं, और जो कोड होगा उस कोड में कंटेन सम नंबर्स, सम अल्फाबेट्स, some specific symbols etc. So with that we prepare a part program, and accordingly your tool will work in a particular manner. That manner will be the same that we have already decided, or that we have already explained in a part program. So when these instructions are coded in a format, then the format that we are providing to the MCU, those instructions are easily interpreted by the MCU. तो जो MCU को हम प्रोग्राम भेज रहे हैं, तो वो जो MCU है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उन इंस्ट्रक्शंस को वो अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, अच्छी तरीके से उनको समझ सकता है. ठीक है, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पार्ट प्रोग्राम में इट मे कंटेन्स ए नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक व्हाट शुड बी द कटिंग पाथ, what should be the other information like the speeds, what should be the speed of the tool, what should be spindle, what should be the feed rate, what should be the depth of cut. All these information are provided to the MCU in the form of part program.
So accordingly सर your एमसीयू क्या सर? एमसीयू sorry एमसीयू क्या सर? एमसीयू MCU कौन पूछ रहा है? Who is asking? अभी भी तो बोल रहा हूँ मशीन कंट्रोल यूनिट होता है MCU, और जब NC सिस्टम पढ़ाया था तब भी तो डिस्कस किया था भाई। ठीक है, तो मशीन कंट्रोल यूनिट को आप क्या दोगे? सिग्नल्स, सॉरी इंफॉर्मेशन दोगे, और उसके हिसाब से वो सिग्नल्स जनरेट करेगा, उनको प्रोग्राम को डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद कुछ सिग्नल्स देगा, और उन सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली योर कटिंग टूल विल वर्क। ठीक है, सो द NC part programming for a particular machine, it consists of instructions. It consists of instruction that define the cutting tool path, spindle speed, feed rate, depth of cut, etc., which is the necessary for machining operation. किसी भी machining operation के लिए जो कि required चीजें हैं, वो सारी चीजें हम provide करते हैं instructions के through, और उसको हम part program बोल रहे हैं। Moving to the next. So a part program may be prepared on a computer or separately. So when the part program is prepared on a computer, then it is called computer aided part programming. But when the part programming is prepared manually without the aid of the computer, then this type of programming is considered as manual part programming. So we will be preparing the programs for various machining operation like turning, milling and drilling. So for these operations we will be creating, or we will be forming the program, and that program will be can be generated on a computer or by some manual operation. So there are two types of program: manual part programming. Two types of programming we generally consider. First is manual part programming. Manual part programming is that programming which is done manually without the help of computer. तो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग आप बना रहे हो, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो बिना कंप्यूटर की हेल्प के, तो वो होता है आपका मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। और व्हेन दिस पार्ट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, that it is considered as the computer aided part programming. Okay, this is a base, and I have already discussed that whenever we are creating a block, that block is what? It is a complete set of instructions. एक particular line मैंने आपको बोला था, करेक्टर से लेकर के, करेक्टर के बाद एक वर्ड बना, वर्ड से फिर क्या हो गया, एक ब्लॉक बना, ब्लॉक से बहुत सारे जब ब्लॉक्स कंबाइंड होते हैं तो एक पार्ट प्रोग्राम बन जाता है। दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो पार्ट प्रोग्राम में क्या होता है कि जनरली एनसी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं। ओके, सो दैट ए कंप्लीट एनसी, जो भी एनसी इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं, उस कंप्लीट एनसी इंस्ट्रक्शंस को एक ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक मैंने बताया था कि अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हो आप पूरा, तो उस पैराग्राफ में जो एक लाइन होती है, जो एक लाइन हम लिख रहे हैं, उस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? दैट लाइन इज कॉल्ड एज ब्लॉक। और हर एक ब्लॉक, उसके बाद दूसरी लाइन आएगी उसके नीचे वाली, फिर तीसरी लाइन आएगी, तो हर एक लाइन को हम बोल रहे हैं ब्लॉक। एंड और दूसरी लाइन से इस ब्लॉक को सेपरेट करने के लिए वी यूज स्पेशल सिंबल EOB, मतलब एक वर्ड यूज करते हैं EOB, दैट इज एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक को यूज करते हैं। सो एवरी वेरियस ब्लॉक्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग एन एंड ऑफ ब्लॉक सिंबल, दैट इज EOB symbol, and each block contains some NC words, and these NC words are nothing but provides a complete instruction to the cutting tool. Okay, so NC words are what? NC words is a complete unit of information in itself. जो NC word हम यूज करेंगे वो खुद में ही एक complete information होते हैं। So a number of NC words are used in part programming, NC part programming languages. So we will be discussing one by one all types of NC word that can be used in a part program. ठीक है, NC word क्या क्या यूज होते हैं, जिसमें G word होते हैं, M word होते हैं, N words होते हैं, T words होते हैं, S words होते हैं। So these words we will be discussing one by one. Please mute your mic. तो ये सारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को G कोड M कोड जो होती है सर। हाँ बिल्कुल। तो G कोड और M कोड जो हम यूज करते हैं वो खुद में ही एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। उसके अंदर जैसे मैंने कहीं लिखा Z01 या Z00, अगर मैंने कहीं लिखा है, या Z01 कहीं लिखा है, तो इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। Z00 अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, Z01 अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, Z02, Z03, जैसे मैंने बोला कि Z00,
तो ये रैपिड मोशन के लिए होता है। आपका टूल किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा, वहां से एक डिफाइंड लोकेशन तक बहुत तेजी से मूव करेगा विदाउट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, बीच में कोई भी काम नहीं करना है, तो मैं 0 अप्लाई करूंगा, तो 0 वर्ड जो मैं जी वर्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0, तो आपके कटिंग टूल को पता है कि भाई आपको कोई भी काम नहीं करना है, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खाली मूव करना है। जितनी स्पीड से आप मूव करना चाहेंगे उतनी स्पीड से मूव करिए। लेकिन जैसे ही मैंने 0 दिया, तो आपके टूल को काम करते हुए जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये होता है लीनियर इंटरपोलेशन। जहां भी इंटरपोलेशन की बात करेंगे, मीन्स वी हैव टू रिमूव सम मटेरियल, वी हैव अ कॉन्टेक्ट विद द वर्क पीस, वी हैव अ कॉन्टेक्ट विद द मशीन, मटेरियल। मतलब आपको मटेरियल रिमूव करते हुए उस मटेरियल पे कुछ ना कुछ वर्क पीस जो भी है उस पर कुछ ना कुछ काम करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है। जब भी रैपिड की बात करूंगा, तो रैपिड का मतलब होता है कि बिना कोई मशीनिंग ऑपरेशन किए हुए आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना है। ठीक है, Z00, Z01, सो दीज आर Z कोड, some M00, so M01, M02, M03, M6, M5, so these are M codes. S specific speed के codes होते हैं, और so that's why we are having a number of NC words. So NC words are what? These are a complete set of instruction in itself. ठीक है, ये भी uniformly they are having they are having complete information in cell. तो खुद में ही वो एक NC वर्ड जो होते हैं वो खुद में ही एक इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, करेक्टर बनते हैं, हमारे पास बिट होती हैं, करेक्टर बनते हैं, करेक्टर से क्या बनता है, वर्ड बनते हैं, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन करोगे तो आप जब उन वर्ड्स को एक पर्टिकुलर सेट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक बन जाता है। बहुत सारे ब्लॉक को अरेंज करेंगे तो क्या बन जाता है, आपका पार्ट प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, और हर एक ब्लॉक को हम सेपरेट करने के लिए एंड ऑफ ब्लॉक यूज करते हैं। So the various types of NC words used in NC part programming are discussed in this below section. So first word is N word. ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए what are the various words that we generally consider in case of part programming. तो आपको पहला पता होना चाहिए first word is the N word. ठीक है, कभी कभी इसको O word भी बोलते हैं, और ये 0 से लेकर के 999 तक हो सकते हैं। इनकी रेंज है 0 से लेकर के 999। ठीक है, यहां तक ये वर्ड यूज हो सकते हैं। तो ये जो एनसी वर्ड होते हैं, दीज वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सिक्वेंशियल नंबर वर्ड। ठीक है, एन वर्ड आर कॉल्ड एज सिक्वेंस नंबर वर्ड विच आर यूज टू आइडेंटिफाई द ब्लॉक। आपको ये पता होना चाहिए कि एन वर्ड क्यों यूज करते हैं, वाई वी आर यूजिंग एन वर्ड। सो एन वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीक्वेंस वर्ड दैट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक। इफ आई एम सेइंग दैट N01, then N01 is representing block number 1. If I am saying N05, then N05 is representing the sequence block number 5. तो ये सीक्वेंस बताता है कि आप किस पर्टिकुलर ब्लॉक पर ऑपरेट कर रहे हो। जैसे मैंने 10 लाइन लिखी, मैंने 10 लाइन नॉर्मली राइट की, लाइन नंबर 1, लाइन या 5 बोल दिया, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। एक पैराग्राफ मैंने लिखा, और एक पैराग्राफ, मान लिया कि मेरा पैराग्राफ एक प्रोग्राम है और उस पैराग्राफ में 4 लाइन या 5 लाइन है, तो जो हर एक लाइन होगी उस भाई हर एक लाइन का कुछ ना कुछ तो सिंबल नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर होगा कि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है। या जब भी हम क्लासरूम में बैठते हैं तो पहली रो, सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरीके से एक नंबर देते हैं ना। तो ये क्या होता है, एन वर्ड क्या होता है, ये नंबर वर्ड होता है, सीक्वेंस नंबर वर्ड होता है दैट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक, कि आपका जो ब्लॉक है वो किस सीक्वेंस पर है। अब मान लिया कोई प्रोग्रामिंग होती है, मान लिया कि जब भी कोई मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा होता है सीएनसी मशीन पर, तो वो पर्टिकुलर नंबर जो ब्लॉक पर्टिकुलरली ऑपरेट हो रहा होता है, मान लिया कि अभी मशीनिंग हो रही थी और आपका तीसरा नंबर ब्लॉक जो है वो लिंक कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि अभी कौन सा ब्लॉक ऑपरेट हो रहा है, कौन सा ब्लॉक पे ऑपरेशन हो रहा है। भाई NC03, तीसरा जो नंबर का ब्लॉक है वो अभी ऑपरेट हो रहा है, या वो वाला जो ब्लॉक है अभी दैट ब्लॉक इज हाईलाइटिंग। ठीक है, अभी वो वाला ब्लॉक कहाँ काम चल रहा है, उसके बाद N04 आएगा, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, सो एन वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सिक्वेंशियल नंबर वर्ड विच आर यूज टू आइडेंटिफाई द ब्लॉक। ठीक है, चलिए, so whenever a block, particular block is executing, that block will be highlighted and that can be easily identified by the sequence number। कि आप बता सकते हो कि भाई अभी कौन सा, अगर किसी ने आपसे पूछा कि which block is being
एग्जीक्यूटेड, कौन सा ब्लॉक काम कर रहा है या अभी कौन से ब्लॉक पे काम चल रहा है, तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई अभी ये वाला नंबर जो है ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, या ये वाला ब्लॉक नंबर अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप यू कैन इजीली. सो दिस एनसी वर्ड इज जनरली इज गिवन फॉर द प्रोग्रामर्स कन्वीनियंस एंड कैन बी ओमिटेड. जरूरी नहीं है आप इस एन वर्ड को यूज करें, लेकिन हाँ जो प्रोग्रामर प्रोग्राम बना रहा है उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसको देते हैं एन वर्ड को, ठीक है. इसको हम ओमिट भी कर सकते हो, नो डाउट यू कैन ओमिट दिस एनसी वर्ड. द सीक्वेंस नंबर कैन बी गिवन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जो सीक्वेंस आप दे सकते हो वो असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में. या तो आप 100 से स्टार्ट करके उसके नीचे आ सकते हो, या 1 से स्टार्ट करके 100 की ओर जा सकते हो. बट सम टाइम वी प्रोवाइड सम गैप बिटवीन द टू एनसी नंबर्स. एक आपने ब्लॉक लिखा, पहला ब्लॉक लिखा, उसका नाम आपने दे दिया N01, उसका सीक्वेंस नंबर आपने N01 दिया. लेकिन आपने दूसरा ब्लॉक लिखा, आपने उसका नंबर N05 दे दिया. वाई? मैंने बोला आप लोगों से कि भाई पहला ब्लॉक लिखा, sometime while making a program, part program, we provide a gap between the two blocks. Like if I am having block number 1, I having block number 2. तो मैंने I have just given the number N01. पहले वाले ब्लॉक को मैंने मान लिया कि 01 नंबर दे दिया, दूसरे वाले ब्लॉक को मैंने N05 दे दिया. अब बोलोगे सर 1 के बाद तो 2 आता है, आपने 5 क्यों दिया, है ना. 1 मैंने बोला कि भाई पहला N ब्लॉक आ गया, पहला ब्लॉक आ गया, N1 दे दिया मैंने उसका नाम, या सीक्वेंस नंबर 1 दे दिया. फिर दूसरा ब्लॉक आया, मैंने उस दूसरे ब्लॉक का नंबर N05 दे दिया. आप बोलोगे कि सर ये क्या, आपने ये 5 क्यों दिया, तो 5 इसलिए दिया, बाई चांस मान लिया आपने प्रोग्राम बनाया और बीच में कोई लाइन ऐड करनी है, या बीच में ब्लॉक 1 और ब्लॉक 5 के बीच में, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बीच में अगर आपको बीच में कोई भी एक और ब्लॉक ऐड करना है, तो क्या होगा कि सारे, अगर आपने सीरियल वाइज या सीरीज में विदाउट एनी डिफरेंस, इफ यू आर हैविंग अ पार्ट प्रोग्रामिंग, जो भी आपने बनाया एक लाइन पर्टिकुलर ड्रॉप की है N01 और N05 के बीच में, अगर मान लिया आपको एक और ब्लॉक बनाना है तो उसको क्या नंबर देंगे. पहले को अगर आपने N01 दे दिया, दूसरे को N02 दे दिया, तो बीच वाले नंबर को पॉइंट में तो दे नहीं सकते कि भाई ये पॉइंट वाला ब्लॉक है. उस केस में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों ब्लॉक उन दोनों ब्लॉक में हम क्या करते हैं, बीच में कुछ स्पेस छोड़ देते हैं नंबर की गैप में. और बाई चांस अगर मुझे इसके बीच में कोई ब्लॉक ऐड करना होगा दो ब्लॉक के बीच में, तो N01 पहला दे दिया है लास्ट वाला, और दूसरे वाले को N05 दे दिया है, तो मैं N02 या N03 या N04 कोई भी एक नंबर इसके बीच में दे सकता हूं, जिससे सीक्वेंस जो होगा बाकी ब्लॉक्स का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है. दैट इज वाई वी आर हैविंग सम टाइम गैप बिटवीन द ब्लॉक नंबर. सो इट इज रिटन some gap is recommended between the sequence number of consecutive block like N10, N20, N30. These things we will be writing. So this is provided for future editing. Sometimes this question is asked, why we are providing a gap between the sequence number of consecutive block. Then you can write, because it is provided. Why? Because it allows some future editing. अगर हमें future में कुछ editing करनी होती है तो हम उसको edit कर सकते हैं. Okay, so these things obviously we can write this number. How can we write significance? तो पहले आप n नंबर लिखेंगे और उसके आगे 01, 02 जो भी ब्लॉक नंबर आपको लिखना है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. So this allows for future editing. So for example, in case of a new block has to be incorporated in the program. ये चलो छोड़िए इसको, ये आप देख लेना, मैंने समझा दिया जो मुझे समझाना है. पहले वर्ड हो गए आपके n वर्ड. द सेकेंड वर्ड दैट वी जनरली यूज इन NC पार्ट प्रोग्रामिंग आर G वर्ड. ठीक है, G वर्ड को हम प्रिपरेटरी वर्ड बोलेंगे कि आपका टूल अब कोई प्रिपेयर हो जाएगा काम करने के लिए. अभी तक तो आपने सीक्वेंस डिसाइड किया. द सेकेंड ऑपरेटर और द सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड एज द प्रिपरेटरी वर्ड. तो समटाइम हेलो एन वर्ड रिपीट कर दिए एक बार थोड़ा. कौन सा वाला? एन वर्ड वाला. N word are the word which are also called as sequence number word that represents the sequence of a particular block. मतलब N word वो वर्ड होते हैं जो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. सीक्वेंस का मतलब हो गया, ये बताते हैं कि अभी कौन सा ब्लॉक चल रहा है, कौन से नंबर का ब्लॉक पे आप काम कर रहे हो. जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में मैंने माना कि 10 रो है टेबल की, ठीक है, एक मतलब बेंचेस बनी हुई हैं और उन बेंच के, अभी हम कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए 10 बेंच पड़ी हुई हैं, तो 10 बेंच पड़ेंगी. पहली बेंच, दूसरी बेंच, तीसरी बेंच, चौथी बेंच, पांचवी, इस तरीके से 10 बेंच पड़ी हुई हैं. और मैं आगे से स्टार्टिंग कर रहा हूं कि पहली वाली बेंच है और आप तीसरे नंबर की बेंच पर बैठे हो, तो मैं बता दूंगा कि आपका जो सीक्वेंस है वो थर्ड बेंच का है.
थर्ड बेंच पे आप बैठे हैं, तो वो सीक्वेंस बताएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम आपने बनाया, उस प्रोग्राम में मान लिया कि 10 लाइन है, 10 ब्लॉक बने हैं, तो सीक्वेंस नंबर बता देगा कि अभी कौन सा ब्लॉक, इसमें ब्लॉक कितने हैं, और अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उस, जैसे मैंने अभी एक और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि 10 सीटें थी या 10 बेंच थी क्लास के अंदर, और मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, और मैंने 9वें नंबर के स्टूडेंट से, 9वें नंबर पे जो सीट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा था, मैंने उसको खड़ा किया, मैंने भाई मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन से नंबर की बेंच पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप बता सकते हो कि 9वें नंबर पे, 9th नंबर की जो बेंच पे जो भी स्टूडेंट बैठे हैं उनसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ऐसा ही यहाँ होगा कि जब पार्ट प्रोग्राम आपने बना दिया और आपने अगर उसमें सीक्वेंस नंबर नहीं लिखा, तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा ब्लॉक अभी ऑपरेट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, किस ब्लॉक पे काम कर रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने सीक्वेंस नंबर दे दिया, तो आप बता सकते हो कि अभी आपका 5वें नंबर का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। 5वें नंबर के ब्लॉक में जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं, वो वाली इंस्ट्रक्शंस आपका टूल परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि 5 वाले ब्लॉक में आपका टूल, मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपका जो टूल है वो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव कर रहा है, तो अभी वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो आप बता सकते हो कि भाई अभी ब्लॉक नंबर 5 वहां एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसमें आपका टूल पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव कर रहा है। अब वो रैपिडली कर रहा है या सर्कुलर इंटरपोलेशन से कर रहा है, तो वो उसमें कोडिंग के हिसाब से डिसाइडेड होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक सर। आया समझ में? यस सर। चलिए अब अगला देख लेते हैं जी वर्ड। तो जी वर्ड को बोलते हैं प्रिपरेटरी वर्ड। प्रिपरेटरी का मतलब होता है आपका जो कटिंग टूल है अब काम करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो दीज जी वर्ड आर कॉल्ड एज द प्रिपरेटरी वर्ड एंड विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर द कंट्रोलर फॉर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर टू बी फॉलोड। तो क्या करता है प्रिपरेटरी वर्ड, क्या होते हैं? प्रिपरेटरी वर्ड वो वर्ड होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको, कंट्रोलर को, टू प्रिपेयर द कंट्रोलर फॉर द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करवानी है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको ऑपरेट करवानी है, एग्जीक्यूट करवानी है कटिंग टूल से, वो इंस्ट्रक्शंस आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस आप देना स्टार्ट कर दो, ये सारी चीजें हैं। तो प्रिपरेटरी वर्ड आर द वर्ड विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर द कंट्रोलर फॉर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर टू बी फॉलोड। या दूसरे वर्ड में मैंने एक ऊपर लाइन भी लिखी हुई है जिसमें पॉइंट वाइज लिखा है, जी वर्ड, दिस जी वर्ड आर द वर्ड्स which are used to prepare the machine to perform a particular function, ठीक है। तो जी वर्ड क्या करते हैं? जी वर्ड वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी भी मशीन को प्रिपेयर करते हैं कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। सो जी वर्ड प्रिपेयर द मशीन टूल्स, जी वर्ड्स प्रिपेयर द मशीन टूल्स और मशीन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी वर्ड क्या करते हैं? मशीन जो होती है उस मशीन को प्रिपेयर करते हैं कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि G01 कोई कोड दे दिया, तो भाई आपका जो कटिंग टूल है अब वो G01 दिया, तो आपका जो कटिंग टूल है वो एक स्ट्रेट लाइन में कट करते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, अब आपका टूल जो है कटिंग टूल वो काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जी वर्ड आर कॉल्ड एज अ प्रिपरेटरी वर्ड विच प्रिपेयर द कटिंग टूल टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं सर? ठीक है। यस सर। अब ये जी वर्ड में जनरली 2 डिजिट यूज की जाती हैं, 2 डिजिट्स तक हम लोग जाते हैं इसमें, जी कोड और इसके आगे 2 डिजिट यूज करते हैं, जैसे 01, 02, 04, G99, दिस टाइप्स ऑफ वर्ड वी जनरली यूज। इसकी रेंज थोड़ी सी याद रख लेना, कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ इतना नहीं है। गेट में इससे रिलेटेड इसके कोड वगैरह याद रखने हैं और एक पर्टिकुलर कोड का क्या मतलब होता है वो आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, ठीक है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या कोड होता है? G90 होता है। G91 किसके लिए होता है? इंक्रीमेंटल के लिए होता है। G00 किसके लिए होता है? G01 किसके लिए होता है? तो याद कर रहे हैं आपको। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जिसमें जी वर्ड की बात किया गया है, तो जी वर्ड क्या है? जी वर्ड आर कॉल्ड एज द प्रिपरेटरी वर्ड्स विच प्रिपेयर द कटिंग टूल और मशीन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। आपका जो भी काम था वो अब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा।
सो फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर G01, तो G01 का मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन. सो G01 इज यूज टू प्रिपेयर द एनसी कंट्रोलर. जो एनसी कंट्रोलर होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट, आपकी एमसीयू जो होता है, वो क्या करेगा, लीनियर इंटरपोलेशन के लिए आपके टूल को क्या कर देगा, लीनियर इंटरपोलेशन के लिए आपके टूल को प्रिपेयर कर देगा. और मतलब वो इंस्ट्रक्शंस भेज देगा आपके कटिंग टूल को कि भाई आपको लीनियर इंटरपोलेशन के लिए तैयार हो जाना है और काम पे लग जाना है. ठीक है. G02 हो जाएगा आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन इन द क्लॉकवाइज वे. सर्कुलर इंटरपोलेशन मतलब किसी कर्व पे आप राइट वार्ड की ओर मूव करते हुए कटिंग करोगे, लेफ्ट से राइट की ओर मूव करोगे. ठीक है. तो दीज आर द वेरियस वर्ड्स दैट वी जनरली कंसिडर द G वर्ड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट NC वर्ड विच आर कॉल्ड एज द X, Y एंड Z वर्ड. ठीक है. X, Y एंड Z वर्ड, ये तीन वर्ड हैं. X, Y, Z क्या होते हैं, आपको कोऑर्डिनेट या एक्सिस वगैरह डिसाइड करने के लिए होते हैं. ठीक है. X, Y, Z ये कोऑर्डिनेट वर्ड्स होते हैं. तो दीज आर वर्ड्स X, Y एंड Z वर्ड्स. These words are known as the coordinates that which are used to give the coordinate positions of the tool. जो आपका कटिंग टूल है, उस कटिंग टूल को पोजीशनिंग देने के लिए, कोई लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं. ओके. सो X, Y, Z words are called as the coordinates which are used to give the coordinates positions to the cutting tool. जो भी टूल होता है उस टूल को कोऑर्डिनेट पोजीशंस प्रोवाइड करने के लिए हम X, Y, Z वर्ड का यूज करते हैं. अब इसमें भी याद रखना है कि X, Y, Z के साथ साथ U, V, W और A, B, C ये भी हम यूज करते हैं. तो याद कर लेना कहाँ कहाँ यूज करते हैं. तो X, Y, Z जो वर्ड होते हैं ये एब्सोल्यूट एक्सिस मूवमेंट के लिए होते हैं. एब्सोल्यूट एक्सिस मतलब X, Y, Z जो आपकी एब्सोल्यूट एक्सिस होती है उनके बारे में बात हो रही है. So X, Y, Z आर यूज फॉर एब्सोल्यूट एक्सिस मूवमेंट. U, V, W और I, J, K अलग से. इसके अलावा भी आप अगर कोई अलग एक्सिस डिसाइड करना चाहते हैं, वी वांट टू डिसाइड सम अनदर एक्सिस एक्सेप्ट X, Y, Z, देन यू कैन डिफाइन दीज एक्सिस with U, V, W और I, J, K and these are relative or incremental movement. ठीक है. So secondary motion parallel to X, Y, Z. अगर X, Y, X को एक्सिस ये है, Y एक्सिस और Z एक्सिस तीन एक्सिस हैं, तो अगर आपको X, Y, Z एक्सिस के पैरेलली कोई एक्सिस डिसाइड करनी है तो आप U, V, W या I, J, K से डिसाइड कर सकते हो. तो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपको मूव करना है देन यू कैन डिफाइन दीज थिंग्स. ठीक है. तो सेकेंडरी मोशन पैरेलल टू द X, Y, Z एक्सिस, तो ये सेकेंडरी मोशन के लिए यूज करते हैं या इंक्रीमेंटल मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं पैरेलली टू X, Y, Z एक्सिस. ठीक है. तो वी कैन डिसाइड अनदर एक्सिस. थर्ड इज द ABC. तो ABC रोटेशन को जनरली स्पेसिफाई करता है. ABC A, B, C. तो एक ABC ये मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा था, तो मैंने बोला था कि ABC मिलिंग में हम यूज करते हैं, बताया था कि नहीं. X एक्सिस के अबाउट, Y एक्सिस के अबाउट, Z एक्सिस के अबाउट. A मतलब आपका जो टूल है वो X एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. B मतलब Y एक्सिस के अबाउट. C मतलब सर्कुलर मूवमेंट इज गिवन अबाउट द Z एक्सिस. So A, B and C, these are used to specify the angular positions about X axis, Y axis and Z axis respectively. अगर X axis के अबाउट रोटरी मोशन हो रहा है तो वो A आ जाएगा वहां पर, Y axis के अबाउट हो रहा है तो B और Z axis के अबाउट हो रहा है तो C. ठीक है. So our different NC system use different formats for writing X, Y and Z word. X, Y और Z word जो भी आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के हम मेथड्स या फॉर्मेट यूज करते हैं. हालांकि जो प्रोग्रामिंग फॉर्मेट होते हैं जो आपके मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में भी जनरली यूज, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. और किस तरीके से कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, तो वो दैट थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग. ठीक है. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है. जैसे इसमें दिया है X 5,5.X 5.285 और Y -6.420. तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट दे सकते हैं. ठीक है. बट समटाइम ये जो कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे होते हैं, कुछ जो आपके फॉर्मेट जो होते हैं, फॉर्मेट फॉर द एनसी प्रोग्रामिंग, कुछ फॉर्मेट में हम पॉइंट को हटा देते हैं जहां जहां पॉइंट लिखा होता है. इन सम फॉर्मेट्स वी जनरली ओमिट्स द डेसिमल पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल इन सच फॉर्मेट्स the above X and Y words will be written as, अगर आप इसमें से पॉइंट हटा दोगे तो 5285 and 64
20 दैट थिंग्स विल बी रिटन. ओके, फॉर पॉजिटिव की बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लस साइन इज ऑप्शनल वाइल नेगेटिव कोऑर्डिनेट माइनस साइन इज मैंडेटरी. अगर आपका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है तो आप प्लस साइन यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट कहीं आपको देना है देन इट इज मैंडेटरी टू राइट नेगेटिव साइन ओवर देयर while representing the coordinate. Okay, next word is yes 5.28 5.6 पॉइंट ये क्यों दिया सर? ये कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें वो ओमिट कर देते हैं पॉइंट को. इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो अगर आपका ये सेंटीमीटर में होगा तो आप मीटर में चेंज कर देंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एमएम में या जिस हिसाब से हम यूज कर लेते हैं. बस इसमें तो मतलब ये डायमेंशन 5285 जो दिया है हमारी डायमेंशन नहीं है. हाँ, ये डायमेंशन मतलब कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में इतनी हाँ, इतना इसका वो मैग्नेटिक का हाँ इतनी डिस्टेंस जाना है, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस जाना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो 3 वर्ड्स पढ़ लिए हम लोगों ने, एन वर्ड, जी वर्ड एंड एक्स कोमा वाई एंड जेड वर्ड. ठीक है, एन वर्ड को सिक्वेंशियल नंबर वर्ड बोलते हैं, जी वर्ड को प्रिपरेटरी वर्ड बोलते हैं और एक्स वाई जेड को कोऑर्डिनेट वर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, तीनों समझ में आ गए. चौथा वर्ड होता है एफ वर्ड, जिसको हम फीड रेट वर्ड बोलते हैं. फीड रेट डिसाइड करने के लिए वी जनरली कंसीडर फी एफ वर्ड. ठीक है, और इसमें 3 डिजिट होती हैं, 3 डिजिट तक आप जा सकते हो. 0 0 0 0 0 नहीं 3 0 F000 इस तरीके से जा सकते हैं. ठीक है, सो एफ वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फीड रेट वर्ड विच आर यूज टू स्पेसिफाई द फीड रेट इन द पर्टिकुलर मशीनिंग ऑपरेशन. सो इन अ पर्टिकुलर एफ वर्ड आर यूज टू स्पेसिफाई द फीड रेट इन अ पर्टिकुलर मशीनिंग ऑपरेशन. कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है, उस मशीनिंग ऑपरेशन में फीड रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो एफ वर्ड होते हैं आपके. ठीक है, सो द यूनिट फॉर द फीड रेट मे बी mm per minute, millimeter per minute, mm per revolution, inch per minute और inch per revolution as determined by the G codes G94 and G95. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप mm per minute में यूज कर रहे हो या mm per revolution में यूज कर रहे हो. इट डिपेंड्स अपॉन अप टू यू. आप इसमें आप देख लोगे कि mm सिस्टम यूज कर रहे हैं या इंच सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके लिए पर्टिकुलर जी वर्ड होता है. यू कैन यूज, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर जी वर्ड whenever you are making the part program. ठीक है, so G94 to and G95 are the G codes to represent the give the feed rate. So mm per minute, millimeter per minute के हिसाब से दे सकते हो और minimum पर mm per revolution के हिसाब से you can give. Okay, and I have already sometime अगर F008 is written, then tool move 0.008 inch per minute unit until it आवाज नहीं आ रही सर? हेलो सर आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है? हाँ सर हाँ, तो F008 जो लिखा है, तो मैं ये देखो मैंने साइड में एक कुछ चीजें रिप्रेजेंट की गई हैं आपको. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने बताया, जैसे F008 लिखा है, तो F008 का मतलब अगर देखा जाए तो F008 का मतलब यहाँ पे होगा कि आपका जो टूल होगा, योर टूल विल मूव विद फीड रेट 0.008 इंच पर मिनट until it reaches the destination. जो आपका डेस्टिनेशन है, जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाएगा, अपने एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक आपका जो कटिंग टूल होगा वो इस पर्टिकुलर फीड रेट से मूव करेगा. ठीक है, हालांकि इसके लिए हमें जी कोड देना होता है कि आप मतलब विच आपको ये सिस्टम यूज करना होता है कि आप mm वाला सिस्टम यूज कर रहे हो या इंच वाला सिस्टम यूज कर रहे हो. यू हैव टू डिफाइन ऑल दोज थिंग्स विद सम पर्टिकुलर जी कोड. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एस वर्ड. एस वर्ड आर कॉल्ड एज स्पीड, कटिंग स्पीड वर्ड. ठीक है, एस वर्ड को हम कौन सा वर्ड बोलते हैं? कटिंग स्पीड वर्ड. सो एस वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कटिंग स्पीड वर्ड एंड these words are used to indicate the cutting speed of the cutting tool. ठीक है, which are used to specify the cutting tool or specify the cutting speed of a machining process.
या इन ए मशीनिंग प्रोसेस, किसी भी मशीनिंग प्रोसेस में कटिंग स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए एस वर्ड यूज करते हैं। एफ वर्ड आर यूज टू स्पेसिफाई द फीड रेट, मतलब किस फीड रेट से आपको कटिंग टूल को फीड करना है, और एस वर्ड होता है स्पीड रेट। ठीक है, तो स्पीड मशीनिंग स्पीड, एस वर्ड आर यूज टू स्पेसिफाई और एस वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीड वर्ड विच आर यूज टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ इन अ मशीनिंग प्रोसेस। कोई भी मशीनिंग प्रोसेस जब हो रही होगी तो उसमें आपकी स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। लेट आई एम सेइंग दैट you are having a turning operation on CNC lathe. So CNC lathe means your chuck is moving with some speed. So what is the speed of that chuck? You will represent the speed of that chuck with S word. If you are writing S1500 means your chuck is rotating with 1500 revolution per minute. Okay. So and F008 means your tool is feeded with some feed rate that we have already decided, whatever the things we are going to decide. And S word generally consider 4 digit word, 4 डिजिट हम इसमें यूज करते हैं। F वर्ड में 3 होती हैं, 2 इसमें होती हैं G वर्ड में। ठीक है, तो S मतलब 9999 तक जा सकते हो, S9999 4 लेटर तक जा सकते हैं आप इसमें। ठीक है, 4 डिजिट तक जा सकते हैं। बोलिए जी सर, में से F000 है तो उसकी स्पीड मिनिमम होगी या F099 उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, ऐसा कुछ है? हाँ, F008 है तो कम फीड रेट से जाएगा, F001 है तो मतलब ये है कि स्पीड पर्टिकुलर, अभी जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो और अच्छे से समझ में आए किस तरीके से हमें डिसाइड करना है। सम टाइम इट इज नॉट गिवन, वी आर नॉट गिवन द स्पीड्स एंड फीड रेट इन द क्वेश्चन। कभी कभी हमें क्वेश्चन में फीड रेट और स्पीड नहीं दी होती है तो हमें खुद से एज्यूम करके काम करना होता है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट यू कैन से इट इज द रेट एट विच योर स्पिंडल विल रोटेट। जिस रेट से आपका स्पिंडल रोटेट होगा उसकी स्पीड है। अगर मैंने लिखा S1000 इट मीन्स योर स्पिंडल इज रोटेटिंग विद 1000 RPM। ठीक है, तो इससे कम पे रोटेट करेगा, इससे ज्यादा पे नहीं रोटेट करेगा। नेक्स्ट वर्ड्स आर टी वर्ड्स। एक मिनट रुको, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं और टी वर्ड और एम वर्ड ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और कितने टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, ये सारी चीजें। ठीक है सर अटेंडेंस लगा